Welcome students. Today we start a very important chapter that is control and coordinations. Why that is the very important? Because you know about them in our body. There are different activity triggers. How can that is controls? ठीक है? Through this video, you know about them. How can the different activities our body that is controls? Normally, you know about them. The movement occur in the organism. There are different purposes. Okay, but they cannot relate it with the growth. Just like we see, when put up the seed inside the soil, that is grow up, ठीक है, वो बाहर आता है, उसमें ग्रोथ होता है. That is clear. ठीक है, जो एनिमल्स है उसके साइज डे बाय डे इंक्रीजेस. ये भी ग्रोथ को इंडिकेट करता है, बट एवरी मूवमेंट्स they cannot showing the growth. ठीक है, just like you see the boys running, are they playing the footballs, cow cutting the foods, cats running. There are different purposes. Not only for that is showing the growth. Means the movement here that is not showing the growth. That is also showing the movements of the body for different purposes. Just like यदि रनिंग ऑफ बॉयज की बात करें दैट इज प्लेइंग. ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, इंजॉय के लिए आपका प्लेइंग कर रहा है. कैट रनिंग कर रही है दैट इज फॉर द कैप्चरिंग द माउस, या दैट इज मूवमेंट फॉर देयर फूड्स. Okay, cutting the foods of animals, this is responsible for the breaking down of the complex food material into the simple form. So how can the different activities or movements that is occur in bodies, how can they are controls? In case of plant animals that is different from each others. Okay, तो जो टॉपिक आज का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस. ठीक है, इन बोथ केसेस एनिमल एंड प्लांट दोनों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन्स आर प्रेजेंट व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर देम control the different activities. Today first we discussed about the control and coordination in case of animals or in case of human beings. Okay, so in case of human beings, the control or coordination that is the there are two main components which are responsible for the, in case of vertebrates क्यों बोल रहे हैं, because animal और जो human beings है that is also included the vertebrates animals. ठीक है, तो vertebrates animal में ये control and coordination दो तरह से होता है. या this is the responsible for two main organ which are responsible for the control and coordination. First one is the CNS. CNS means central nervous systems. ठीक है, सेकेंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स. ओके, दो मेन पार्ट है बॉडी में which are responsible for the control of different activities just like digestion, respirations, everything that is control only two. CNS में there are two main parts which are control. First one is the brain and second one is the spinal cord. Okay, this two is known as the CNS, central nervous system. ये center होता है body का which are control the different activities that is occur inside the bodies. Okay, in case of peripheral nervous system there are different type of nerve cells which are released from the brain and spinal cord which are responsible for the control the different activities. Just like in case of peripheral, that is the spinal cranial nerve, spinal, okay, as well as that is the visceral nerve.
this different nerve that is occurring inside the peripheral. ठीक है, cranial nerve, this nerve that is originated from the brain. कहां से origin होता है cranial nerve? brain से होते हैं. ओके, यदि पेयर की बात करें cranial nerves जो ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं वो 12 पेयर्स होते हैं. ओके, spinal nerves that is occur from the released from the spinal cord. और इसका जो नंबर होता है that is present in the pair 31 pairs. कितने पेयर होते हैं? 31 pairs of spinal cord. ओके, 12 पेयर ब्रेन से रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं cranial nerve, और 31 पेयर that is released from the spinal cord which are responsible for the control of different activities that is occurring inside the bodies. और ये जो नर्व होते हैं that is different types. ये नर्व आपके 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ से क्लियर हो गया. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है. इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच आर रिलीज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट इज क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड विस्टर्न नर्व. ये सभी कहां से रिलीज होते हैं? जैसे क्रेनियल नर्व दैट इज रिलीज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व दैट इज रिलीज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. और ये जो नर्व सेल की बात कर रहे हैं दे आर डिफरेंट टाइप. नार्मली दे आर 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, इसमें होता है फर्स्ट जो नर्व होता है उसको हम सेंसरी बोलते हैं. सेकंड वन इज द मोटर एंड थर्ड वन होता है मिक्स्ड. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में 3 टाइप्स नर्व सेल्स आर प्रेजेंट which are responsible for the transfer of impulses or messages from one cell to another. Yeah, from different part of body to the brain or spinal cord and again the return to the spinal cord or brain. ठीक है, sensory nerves this is responsible for only the transfer of impulses or messages from affected organ to the CNS central nervous system तक जो ले जाने के काम करता है. ठीक है, जैसे स्किन से टच करते हैं, हार्ट प्लेट होता है तो यहाँ से जो नर्व ले जाती है ब्रेन को, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व. मतलब ले जाने वाले नर्व को हम सेंसरी नर्व बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड वन इज द मोटर नर्व्स. मोटर नर्व दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंपल्सेस फ्रॉम CNS टू द अफेक्टेड ऑर्गन. मतलब जो सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी का है, स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से जो मैसेज मिलता है बॉडी के उस पार्ट को ले आता है जहां पर इसको अफेक्ट करना है. जैसे यदि हैंड की बात करें, जैसे हार्ट प्लेट से टच करता है, ठीक है, तो जैसे ही टच होता है अपने आप पीछे आता है. क्यों? क्योंकि जो सेंसरी नर्व तुरंत मैसेज कहां जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड तुरंत उस पर रिस्पॉन्स करता है कि हैंड को पीछे करिए, अदरवाइज दैट इज द बर्न. ओके, स्नेक की बात कर रहे हैं, आप फील्ड में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, सामने आपके स्नेक आ गए, कौन देखा आपका सेंसरी ऑर्गन? कौन देखा? आईज देखा. आई के द्वारा जो नर्व सेल्स है मतलब सेंसरी नर्व तुरंत मैसेज कहां ले गया? ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन क्या किया? तुरंत उसको मैसेज को उसका आंसर ट्रांसफर कर दिया. किसको दिया? आईज को देगा नहीं, किसको दिया? लेग को. ठीक है, तो जो ले आने का काम करता है उसको मोटर करता है. लेग को क्या करता है कि मूवमेंट करो या मुड़ो और वहां से भाग जाओ. ठीक है, तो ये जो वर्क करता है उसका नाम है मोटर नर्व. एंड थर्ड होता है मिक्स, जो दोनों का काम करता है, मतलब ले आने का भी काम करता है और ले जाने का काम करता है. दैट इज क्लियर? ओके, टुडे वी डिस्कस द वन पार्ट दैट इज द नर्वस सिस्टम्स. ठीक है, नर्वस सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, नियर अबाउट 40-100 मिलियंस number of nerve cell are present and they are interconnected in our bodies. पूरे बॉडी में इसका जाल फैला हुआ है. ठीक है, और 40 millions 1400 million numbers में that is present in our bodies which are responsible for transfer of messages. ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. इसकी जो यूनिट होते हैं दिस नोन एज द न्यूरॉन. न्यूरॉन कहते हैं इसकी यूनिट को.
या नर्व सेल्स कहते हैं. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स? यू सी, एवरीवन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, और इसको ड्रॉ करके कॉपी पे आप मुझको सेंड करिएगा, ठीक है. ये पार्ट जो elongated देख रहे हैं, दिस नोन एज द एक्सॉन. ये जो थिकर पार्ट है, दिस नोन एज द डेंड्रॉन. और जो इससे ब्रांचेस निकले इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है. ये सेंट्रल पार्ट दैट इज नोन एज द साइटॉन, इसको सेल बॉडी भी बोला जाता है. इनसाइड दैट न्यूक्लियस, और इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. ये मसल्स है, ठीक है. और एक्सॉन एंडिंग जिससे जुड़ा हुआ मसल से, इसको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग. ये बीच में जो गैप दिख रहा है, दिस इज नोन एज द, और जो इसको कवर किया हुआ इसको कहा जाता है माइलिन शीथ. और इन जो बीच में गैप है, दिस नोन एज द नेजल्स ग्रेन्यूल्स. ठीक है. सो यू सी देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल. न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो 3 मेन पार्ट्स है. आपका सबसे elongated जो पार्ट होता है, दिस नोन एज द एक्सॉन. दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेकंड पार्ट आपका साइटॉन, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं. Inside the cell body that contain the nucleus, mitochondria present होता है, which are responsible for the transfer of impulses. कोई भी मैसेज ट्रांसफर होता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है. वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? इससे माइटोकॉन्ड्रिया को जो प्रेजेंट होता है वो ट्रांसफर करता है. किसको ट्रांसफर करता है? डेंड्राइट्स को. यू सी हियर, एक नर्व सेल में कई डेंड्रॉन्स हैं, ठीक है. डेंड्रॉन ये थर्ड पार्ट हो गया. और डेंड्रॉन्स अगेन दैट डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ब्रांचेस, दिस इज नोन एज द डेंड्राइट्स. अब डेंड्राइट्स से क्या होता है? नेक्स्ट आपका नर्व सेल, दिस इज एक्सॉन का एंडिंग यहां पर आके जुड़ता है, ठीक है. तो यू सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स. माइलिन शीथ होता है, कवरिंग जो करता है एक्सॉन को चारों तरफ से, उसको माइलिन शीथ बोला जाता है. निडल्स ग्रेन्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन टू माइलिन शीथ, ठीक है. माइलिन शीथ इस पर्टिकुलर रीजन में नहीं होता, यहाँ पर निडल्स ग्रेन्यूल होता है. इसका फंक्शन क्या है? वन इज द ट्रांसफर ऑफ इंपल्सेस. दैट इज क्लियर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. हाउ कैन द वर्क, इसका जो वर्क होता है न्यूरॉन्स का, हम कहें कि दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज इन मिलियन नंबर्स. कितने मिलियन नंबर में? 1400 मिलियन नंबर्स. एंड दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. और एक पूरे बॉडी में ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. एक तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी में नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किए, जाल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है. इसका फंक्शन क्या होता है? दैट इज रिस्पांसिबल इमीडिएटली, और इसकी जो गति होती है मूवमेंट की, ट्रांसफर करने की, जो आपका इलेक्ट्रिक वायर में जो इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, ठीक, जहां एंडिंग है वहां से टच करने के विद इन सेकेंड्स वो पहुंच जाता है. उससे 100 गुना फास्ट आपका न्यूरॉन सेल वर्क करता है बॉडी में. ओके, मतलब बहुत फास्टली ये वर्क होता है इसका. तो हाउ कैन द वर्क? नॉर्मली इन केस ऑफ न्यूरॉन्स,
वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, और जहां पर जुड़ते हैं उसको हम सिनेप्स कहते हैं, जस्ट लाइक यू सी हियर। न्यूरोट्रांसमीटर, इसको स्पेशली जो केमिकल होता है दिस इज नोन एज द एसिटाकोलिन। ठीक, एक्सॉन के थ्रू इंपल्सेस मैसेज ट्रांसफर होते हैं, एक गैप होता है, दिस गैप इज नोन एज द सिनेप्स। ठीक है, और दूसरे के क्या होता है, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो वेयर द न्यूरॉन दैट इज अटैच्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, क्योंकि न्यूरॉन की एक पर्टिकुलर रीजन यू नो अबाउट देम, हमारे बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल है वो आपका न्यूरॉन सेल होती है। ठीक है, और ये न्यूरॉन सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड ना होकर के बीच में गैप होता है, दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है दिस नोन एज द सिनेप्स। तो व्हाट इज द सिनेप्स, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, जहां पर दो न्यूरॉन ज्वाइनिंग करते हैं वहां पर एक पर्टिकुलर रीजन पर एक गैप होता है जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं, एंड दिस गैप इज फिल्ड बाय द सम केमिकल्स आर प्रेजेंट इज नोन एज द न्यूरोट्रांसमीटर। इसको न्यूरोट्रांसमीटर टर्म कहा जाता है, बट जो केमिकल होता है जिसका नाम है एसिटाकोलिन। क्या नाम है, एसिटाकोलिन। This chemical is responsible for the transfer of impulses or message from one neuron to another। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का काम करता है, और जो ये केमिकल होता है पर्टिकुलर वन न्यूरॉन साइड होता है, केवल एक ही साइड होता है, दोनों साइड नहीं होता। तो इसमें जो फ्लो होता है ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब इस तरह, जिधर केमिकल है उधर से फ्लो दूसरे न्यूरॉन की तरफ होता है इसका। तो दैट इज क्लियर। एक एक्सॉन के से दूसरा डेंड्राइट्स आके जुड़ता है। ठीक, डेंड्राइट से फिर कहा जाएगा उसके साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए फिर नेक्स्ट डेंड्राइट्स। इस तरह पूरे बॉडी में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, और पूरे बॉडी में नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए कहीं भी बॉडी में थोड़ा सा भी पेन होता है, थोड़ा सा भी पिंच होता है, तुरंत आपको पता चल जाता है, क्योंकि तुरंत वहां से इंपल्सेस कहां चले जाता है मैसेज, ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, आपको डिस्कस करेंगे बाद में सीएनएस के बारे में, क्योंकि वो दोनों का फंक्शन अलग अलग है। सीएनएस जो होता है, सीएनएस में जो ब्रेन होता है वो उसका जो वर्किंग होता है आफ्टर थिंकिंग, किसी चीज को सोच समझ करके जो वर्क किया जाता है वो ब्रेन के द्वारा होता है। लेकिन जो इमीडिएट एक्शन लेता है, ठीक है, जैसे सर्प देकर तुरंत भागना, वहां तो सोचने के काम नहीं है, सोचोगे तो सर्प काट लेगा। या आपका जो फिंगर है टच कर गया है हॉट प्लेट से, यदि नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। तो वहां पर जो है इमीडिएट जो वर्क करना है वह आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन जिस पर थिंकिंग करने के बाद जो वर्क होता है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। दैट इज क्लियर। So you see here how can the transfer of impulses from one neuron to another। तो ये किसके थ्रू होता है, ये सिनेप्स होता है। दो न्यूरॉन के बीच में गैप होती है जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं। ठीक, इस सिनेप्स में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज द सम केमिकल आर प्रेजेंट जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। लेकिन केमिकल का नाम क्या है, वो एस्टाकोलिन है, which are responsible for the only transfer of impulses from one neuron to another। इसका फंक्शन क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज को, जो मैसेज ट्रांसफर हुआ है ब्रेन के द्वारा, इफेक्टर ऑर्गन के द्वारा हुआ है, उसको ट्रांसफर करना।
और जिधर अटैच होता है उधर से ट्रांसफर करता है। तो नॉर्मली इन केस ऑफ नर्व सेल्स की बात करें तो इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। दैट इज क्लियर। तो व्हाट इज द न्यूरॉन, हाउ कैन दे आर फंक्शन अकर्स इनसाइड द बॉडीज, दैट इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन इसमें? हमारे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सीएनएस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू इफ यू लव वाचिंग द वीडियोस। Subscribe my channels and press the icon bell if you like them. Okay, thank you.